قوم کے ساتھ مل کر قبضہ گروپ کو ہٹانا ہے، بہت جلد حقیقی آزادی کے لیے کال دوں گا، آپ سب نے ساتھ دینا ہے۔ عمران خان کا فیصل آباد میں جلسہ عام سے خطاب، کہا ملک کا دیوالیہ نکل رہا ہے، یہ دونوں خاندان 30 سال سے ملک کا پیسہ لوٹ رہے ہیں۔ IMF کے مطابق آنے والے دنوں میں مزید مہنگائی ہوگی، 4 ماہ میں معیشت آسمان سے زمین پر آ گئی۔ عمران خان کا کسی سے رابطہ نہیں ہوا، تحریک انصاف کا دو ٹوک موقف، بیک ڈور رابطوں کی تردید کر دی، کہا ایسی خبروں میں کوئی صداقت نہیں۔ فواد چودھری نے کہا خفیہ مذاکرات پر یقین نہیں رکھتے، بات چیت کے لیے صرف ایک شرط ہے، انتخابات کا اعلان کیا جائے، ملک کے فیصلے عوام نے اپنے ہاتھ میں لے لیے ہیں۔ عمران خان کی تقریر اور بول کی ریٹنگ سے حکومت خوفزدہ، پیمرا کا غیر قانونی اقدام، عمران خان کی تقریر کے دوران بہاولپور، فیصل آباد، شکارپور، مٹیاری اور ملتان سمیت کئی شہروں میں بول نیوز کی نشریات بند کر دی گئی۔ حکومتی اقدام کے باوجود بول نیوز کی ریٹنگ پر فرق نہ پڑا، PTCL نے حکومت کے منفی ہتھ کنڈوں کی تصدیق کر دی۔ ٹویٹر پر صارف کو جواب دیتے ہوئے کہا بول نیوز کو متعلقہ حکام کے کہنے پر بند کیا گیا ہے۔ دادو اور سہون کو بچانے کے لیے منچھر جھیل میں کٹ لگا دیا گیا، ریلا تیزی سے قریبی آبادیوں کی جانب بڑھنے لگا، وزیر اعلیٰ کا آبائی گاؤں میں بھی زیر آب، علاقے میں ہنگامی حالت نافذ کر دی۔ شرجیل میمن کہتے ہیں کٹ لگنے سے 1.25 لاکھ سے زائد افراد متاثر ہوں گے، کوٹری کے قریب 5 دیہات سیلابی پانی کی لپیٹ میں آ گئے، سینکڑوں مکانات ڈوب گئے، نواب شاہ سیم نالے میں شگاف، مٹیاری کی چندن نہر میں بھی کئی جگہ شگاف، کئی دیہات ڈوب گئے۔ ملک میں سیلاب کی تباہ کاریاں نہ تھم سکیں، بے رحم پانی مزید 26 زندگیاں پی گیا، اموات 1290 تک جا پہنچی، زخمیوں کی تعداد 12,588 ہو گئی، 5,44,376 گھر تباہ ہوئے، 7,36,000 سے زائد مویشی ہلاک ہوئے، 32,77,000 ایکڑ پر کھڑی فصلیں برباد ہوئیں، مواصلاتی نظام ناکارہ ہو گیا، رابطہ سڑکیں تباہ، ٹرین سروس بھی معطل ہو گئی۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے جو وعدہ کیا پورا کیا، سیلاب سے متاثرہ بحرین پل کو آرمی انجینئرز نے دن رات کام کر کے ٹریفک کے لیے کھول دیا، علاقہ مکین خوش، پاکستان آرمی زندہ باد کے نعرے لگائے، پل کی بندش سے مقامی آبادی کا رابطہ مینگورا اور خواجہ خیلا سے کٹ گیا تھا۔ بول نیوز سیلاب متاثرین کی آواز بن گیا، سیلاب زدگان کے لیے ملک کے سب سے بڑے چینل پر سب سے بڑی ٹیلی تھون، چیئرمین سیلانی ویلفیئر مولانا بشیر فاروقی کی خصوصی شرکت، ٹیلی تھون میں 7 کروڑ روپے سے زائد جمع، مجموعی طور پر 20 کروڑ تک جمع ہو گئے۔ اور بولان میں 12 انچ کی پائپ لائن کا کام مکمل، صوبے میں 10 روز سے معطل گیس کی فراہمی کی امید، سوئی صدر حکام کا کہنا ہے کہ گیس کی سپلائی بحال کرنے کے لیے گرین سگنل دے دیا ہے۔ سیلابی ریلے سے گیس پائپ لائن کو نقصان پہنچا تھا، کوئٹہ مستونگ کلات پشین زیادت سمیت دیگر علاقے متاثر ہوئے تھے، 20 انچ سے ریلوے ٹریفک معطل۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں بول نیوز اور میں ہوں محمد کامران۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، مزید خبروں اور تفصیلات کے لیے آپ وزٹ کر سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ bolnews.com۔ ابھی ایک بریک، اور بریک کے بعد آپ پروگرام دیکھ سکیں گے بس بہت ہو گیا وذ جیسمی منظور، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ Everything you know that you can get, don't let them guide your life towards regret. ایسا گلابی گلو جو روشن کرے سب کو، نیا لکس، خوبصورتی جو روکے نہ رکے۔ پیش ہے نیا لکس، منفرد گلاب اور وٹامن ای کی خوبیوں کا ملاپ، یہ دے آپ کو گلابی گلو۔ ایسا گلابی گلو جو روشن کرے سب کو، نیا لکس، خوبصورتی جو روکے نہ رکے۔ تاریخ کا سب سے طاقتور ایریل بلو فارمولے کے ساتھ تو بناؤ کالرز پہ داغوں کی دیوار، جمے گا دھول، مٹی اور پسینہ، بناتے ہیں اور ٹف، تو ہو جائے مقابلہ نئے ایریل سے، جس کے نیلے ذرات کالرز پہ جمے داغوں کی ہر دیوار گرائے اور دے چمکدار صفائی۔ صرف ایک دھلائی میں اب ہوں نہیں، بلو بلو۔ وہ کہانیاں سناتی بھی تھی
और बनाती भी थी। फिर शेर आया, सारे जानवर भाग गए। मम्मा, शेर क्या खाते इतने पावर्स के लिए? पराठा। ये उसकी ममता ही तो थी जो मेरे लिए शेर को भी पराठा खिलाती थी। आज भी कुछ भी तो नहीं बदला। आपको पता है स्पाइडरमैन इतनी पावर के लिए क्या खाता है? क्या? पास्ता। बस शेर की जगह स्पाइडरमैन ने ले ली और पराठे की जगह पास्ता ने। ज़माने कई बदले, न बदली ममता न बदले हम। जहां ममता वहां डालडा। ये 4 दिन पहले आपका फ़ोन कॉल का रिकॉर्डिंग नहीं आई है, ये शौकत तरीन की आवाज़ नहीं थी, ये कंस्पिरेसी हो गई, वो कंस्पिरेसी हो गई। इनको शर्म नहीं आती? $25,000 महीने का ये देते हैं उधर लॉबिंग में अमेरिका का, और फिर आके हमको अमेरिका के भाषण देते हैं। कौन जेपरडाइज कर रहा था इस IMF प्रोग्राम को? हम कर रहे थे, या जिन्होंने टेप्स लीक किए हैं? टेप्स क्यों लीक किए आपने, जब अभी प्रोग्राम जो है साइन ही नहीं हुआ? आप अपने गिरेबान में झांकें। आपने इसलिए कि हमें पॉलिटिकली आप हमें वो बैकफुट पे रखने की कोशिश कर रहे थे, आपने जल्दबाजी की। अगर आपने लीक करनी थी तो आप मंगल को करते, बाद में करते। उस दिन आपने क्यों किया? 4 माह हो गए हैं मुझे दिन रात या तो IMF, अब कोई ज़रा सी बात होती है, यानी अब तो अगर छींक भी मारनी हो तो IMF से पूछना पड़ेगा। कितनी ये शूमी किस्मत है, कितनी अफसोस की बात है कि आप खुद अपने ताईं आप आज़ाद नहीं है कि आप फैसला कर सकें। गद्दारी के सर्टिफिकेट देना बंद कर दें। ये मैं सारी पार्टीज को कहता हूँ, हमारी पार्टी हो, दूसरी पार्टी हो, जो भी हो, ये गद्दारी के जो सर्टिफिकेट बांटना शुरू कर रहे हैं, ये डेमोक्रेसी के लिए ठीक नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ जास्मीन मंजूर और आप देख रहे हैं बस बहुत हो गया। सवाल ये पैदा होता है कि सियासत किस मोड़ जा रही है। कभी ऑडियो लीक्स और कभी वीडियो लीक्स की जद में कोई ना कोई रहता है। क्या पाकिस्तान में हम सब जानते नहीं कि हर वक्त मोबाइल फ़ोन टैप होते हैं और कोई ना कोई सुन रहा होता है। बात सारी ये है कि जो टैप कर रहे हैं या जो सुन रहे हैं वो किस मफाद में है। मतलब जब आपका अपना दिल करेगा तो आप अपने रिसोर्सेज इस्तेमाल करते हुए, जो कि शायद आपने पाकिस्तान के लिए नहीं लेकिन बैरूनी मुल्क से होने वाली कोई साजिश या कोई ऐसी हरकत जिससे पाकिस्तान के किसी मफाद को नुकसान पहुंचे, उसके लिए आपको ये फैसिलिटी दी गई है। लेकिन मुझे बड़ा अफसोस हुआ कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान जो कह रहे हैं कि अब हमें अगर छींक भी मारनी पड़ी है तो हमें IMF की तरफ देखना पड़ेगा। मैं जब से 4 महीने से आया हूँ IMF के इर्द गिर्द दौड़ रहा हूँ। सवाल ये पैदा होता है कि 23rd जो ये किस्त हमने ली है, नाक से चने चबवा दिए IMF ने आपको। उन्होंने हर तरह से अपने गोल पोस्ट को चेंज किया, कभी ये हटाओ, कभी ये हटाओ, कभी ये बढ़ाओ, कभी ये फ्यूल एडजस्टमेंट आगे करो, इलेक्ट्रिसिटी की प्राइसेस ऊपर करो, इसको नीचे करो, इसको ऊपर करो। जाहिर सी बात है हम इतने ज़्यादा मकरूज हैं और इतने ज़्यादा कर्जों के नीचे दबे हुए हैं। अब कर्जे किसने ज़्यादा लिए और किसने कम लिए, इस बहस में पड़े बगैर जाहिर सी बात है आज के सवालात की तरफ आना पड़ेगा कि पाकिस्तान में शरह सूद ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, महंगाई का तूफान है और अब उस पर एक कुदरती आफत ने और भी ज़्यादा, कहते हैं ना, भड़कती हुई आग पर तेल का काम किया है। शौकत तरीन साहब ने कुछ भी कहा हो, एक बात तो उनकी ठीक है कि क्या ऑडियो लीक्स करने वाले ये सोच रहे हैं कि वो भी इस IMF के प्रोग्राम को जेपरडाइज कर रहे थे उसको लीक करके। शौकत तरीन साहब ने जो भी बात की वो तो उनसे सवाल कर लिया जाएगा, वो किस मफाद में थी, किस इंटरेस्ट में थी। लेकिन जाहिर सी बात है कि क्या छोटी छोटी बातों पे गद्दारी के सर्टिफिकेट्स बांटना जायज़ है, दहशतगर्दी के केसेस बनाना जायज़ है। इस वक्त आपकी तमाम तर तवज्जो इन फ्लड इफेक्ट्स की तरफ होनी चाहिए। पाकिस्तान का ऑलमोस्ट 1/3 एरिया इज अंडर वाटर। लोग इस वक्त बीमारियों में मुब्तला होते जा रहे हैं, पीने का साफ पानी नहीं है,
जिंदगी अजीरन हो चुकी है और IMF के साथ प्रोग्राम भी शायद रीनेगोशिएट करने की कोशिश करनी पड़ेगी। लेकिन अब क्या हो सकता है, अब तो डील साइन हो चुकी है। आपको तकरीबन 6.5 बिलियन रुपीस मिल चुके हैं, कुछ थोड़े बहुत बिलियंस अब कतर से, कुछ UAE, कुछ सऊदी अरेबिया से डिफर्ड ऑयल पेमेंट्स की जद में आ तो जाएंगे। बट व्हाट नेक्स्ट? क्या पाकिस्तान इसी तरह भिखारियों की तरह चलता रहेगा भीख मांग मांग के? क्या हमारे पास मईशत के हवाले से कोई प्लान है, या एक दूसरे को नीचे दिखाने के अलावा हमारे पास और कोई प्लान नहीं? वफाकी वजीर भी रह चुके हैं, फॉर्मर फेडरल मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर तरीन साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सेनेटर भी हैं, और उसके साथ साथ ये कहना चाहूंगी कि पाकिस्तान की मईशत पे एक गहरी नजर भी रखते हैं। सो व्हाट नेक्स्ट का सवाल तो मैं उनसे करूंगी सबसे पहले, लेकिन लेट्स क्लियर दिस थिंग अबाउट द ऑडियो लीक्स फर्स्ट। शौकत तरीन साहब, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो। थैंक यू जी। मैं खाली आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि लोग, मैंने आपकी गुफ्तगू सुन ली, आई कंप्लीटली एग्री। फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड कंप्लीटली स्टॉप दिस थिंग कि एक दूसरे के टेलीफोन रिकॉर्ड्स निकालना, उनको टेप करना। एक 1990 की दिहाई की दुनिया पता नहीं कहां से कहां पहुंच गई, हम 90s की सियासत में पड़े हुए हैं। लेकिन आई जस्ट वांट टू आस्क यू दिस वन क्वेश्चन, डू यू थिंक यू शुड नॉट हैव सेड द थिंग्स दैट यू सेड? आपको शायद ये नहीं कहना चाहिए था बिफोर द IMF बेल आउट पैकेज? जैस्मीन, हमने तो क्या कहा है, ये तो प्राइवेट कॉन्वर्सेशन है। उसका एंड रिजल्ट क्या था? ये मंडे की जो इन्होंने लीक किया, उससे पहले हमने क्या किया? हमने सिर्फ तैमूर झागड़ा ने सिर्फ इसको अपना मिफ्ता इस्माइल को ख़त लिखा और कहा कि मैं आपको 2 महीनों से कह रहा हूँ कि 100 अरब रुपया जो आपने हमें देना है KP को और आप दे नहीं रहे, तो उसमें मेरे साथ गुफ्तगू करें और इसका रिजॉल्व करें। और उसके बाद और उसमें सेहत कार्ड के ऊपर इन्होंने पैसे नहीं दिए, उन्होंने उनकी डेवलपमेंट के लिए पैसे नहीं दिए जो उन्होंने उनको वादा किया हुआ था। और फिर उन्होंने कहा कि एक बाय द वे एक और बात भी है कि आजकल फ्लड्स भी आ गए हैं, इसके बारे में जो हमारा सरप्लस है उसके बारे में हमें ये तशवीश है। ये कहा उन्होंने। पंजाब के बारे में जो गुफ्तगू इन्होंने रिलीज़ की है, पंजाब ने तो ख़त भी नहीं लिखा। वो तो क्या हम बात कर रहे हैं, हम कह क्या रहे हैं? वैसे बाय द वे हम कह ये रहे हैं कि यार इस वक्त बहुत बड़ा एक अलमिया हो गया पाकिस्तान के साथ, और वो है फ्लड्स, और हम लोगों से भीख मांगते फिर रहे हैं। तो हमारा मौक़िफ़ ये था कि हम हुकूमत को कहें कि IMF के पास जाए और कहे कि जनाबे वाला, ये जो अभी हम लोगों ने सरप्लसेस, प्रोविंशियल सरप्लसेस आपकी टेप हैं, वो मुश्किल हो जाएंगे। हम ये हमारे पैसे हैं, हम चाहते हैं कि ये हमारे लोगों पे ही खर्च हों, फ्लड विक्टिम्स पे खर्च हों। ये हम क्या कहना चाह रहे थे इनको, और हमने इनको इसलिए कहा कि हमने कोविड में यही किया था। हमने कोविड में जाके IMF को, इमरान खान ने जाके MD जो हैं IMF की, उसको टेलीफोन करके कहा था, जनाब मोहतरमा ये हमें पैसे जो आप कह रहे हैं कि ये फिस्कल स्पेस कम कर रहे हैं, हमें फिस्कल स्पेस चाहिए, क्योंकि हमने इनको कोविड के लोगों का ख्याल रखना है। दिस इज़ ऑल वी आर सेइंग, और कुछ नहीं हम कह रहे। लेकिन ये लीक इसलिए की गई, हमें एम्बैरस करने की कोशिश कर रहे थे, और अदरवाइज़ इसका मकसद कोई नहीं है। लेकिन लेट्स मूव फॉरवर्ड, इससे आगे चलें। मैं अभी भी इनको ये कहना चाह रहा हूँ, हमारा मकसद ये था कि एट अप्रोप्रिएट मोमेंट हमें इनसे बैठ के ये गुफ्तगू फेडरल गवर्नमेंट से करनी पड़ेगी। अब फेडरल गवर्नमेंट ने तो हमारे से गुफ्तगू क्या करनी थी? अभी खुद वो कह रहे हैं हम IMF के पास जाएंगे, वर्ल्ड बैंक के पास, एशियन डेवलपमेंट, सबसे मिल के हम उनको बताएंगे तबाहकारी जो है वो 2000 से 2500 अरब हो गई है, तो हमें आप हेल्प करें। हम क्या कह रहे थे इनको? तो हमारी बातें बड़ी कड़वी लगती हैं, लेकिन असल हकीकत तो यही है ना। दैट्स ऑल वी वर सेइंग। शौकत तरीन साहब, आज इस बात का भी सवाल का जवाब दे ही दें। ये जब भी इनसे बात करो ये कहते हैं कि जी इतने ज्यादा कर्जे लिए, रिकॉर्ड तोड़। एक बार फिर नंबर 1। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।